خدا کی محبت، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میں وائلٹ سسل آپ تمام بھائیوں بہنوں دیکھنے اور سننے والوں کو سلام عرض کرتی ہوں اور آپ سب کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ خداوند کا دہنا قوی ہاتھ آپ سب پر ہمیشہ رہے، آمین۔ ناظرین، اب ہم اپنے پروگرام کی طرف چلتے ہیں، جس میں ہم سب سے پہلے روپ جارڈن کی خوبصورت آواز میں گیت سنتے ہیں۔ گیت کے بول کچھ یوں ہیں: یسوع کا ایک دوست لازر رہتا تھا بیتنیہ۔ لازر قبر میں پڑا، ہاتھ اور پاؤں بندھے کفن میں چہرہ تھا لپٹا، اے لازر باہر نکل آ، یسوع نے پکارا، یسوع کی آواز سن کر لازر دوڑا آیا، او مریم مارتھا آنسو نہیں۔ جی تو ناظرین، پروگرام کے اس حصہ میں اب باری ہے کہانی کی۔ ہماری آج کی کہانی ہے یسوع المسیح پانی پر چلتا ہے۔ یسوع المسیح نے اپنی زمینی خدمت کے دوران بہت سے عجیب کام کیے جنہیں کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے۔ ایک مسیح خداوند کی شخصیت ایسی ہے جو معجزانہ قوت رکھتی ہے۔ آئیے یسوع مسیح کی معجزانہ قدرت کی یہ کہانی سنتے ہیں۔ کیا تم جانتی ہو ہماری آج کی کہانی خداوند یسوع مسیح کے ایک معجزہ کے بارے میں ہے، اور ہمارا آج کا لفظ بھی معجزہ ہی ہے۔ معجزہ؟ یہ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ ارے بیٹا، معجزہ کسی بھی غیر فطری کام کے ہو جانے کو کہتے ہیں۔ لو، اب بھلا یہ غیر فطری کیا ہے؟ ارے بیٹا، کوئی بھی ایسا کام جو انسانی عقل اور سمجھ سے باہر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ سمجھ سے باہر ہو؟ ہاں بیٹا ہاں، جیسے ہماری آج کی کہانی کا یہ واقعہ۔ آج کی کہانی ہے کیا؟ ہماری آج کی کہانی کا نام ہے یسوع مسیح پانی پر چلتا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی پانی پر چل سکے؟ ہاں بیٹا ہاں، یہی تو معجزہ ہے۔ اچھا؟ ہاں جی، کوئی بھی ایسا کام جو ہماری سمجھ کے مطابق کبھی نہ ہو سکتا ہو، اسی کا ہو جانا معجزہ کہلاتا ہے۔ اچھا، میں سمجھ گئی، کسی بھی عجیب کام کا ہو جانا معجزہ ہے۔ شاباش بیٹا شاباش، اب تم سمجھ گئی ہو۔ اچھا جی۔ ہاں جی۔ خداوند یسوع مسیح گاؤں سے باہر تھے۔ ہزاروں لوگ آپ کا کلام سننے کے لیے آپ کے ساتھ تھے، لیکن جب شام ہونا شروع ہوئی اور سب لوگوں کے گھر جانے کا وقت ہوا تو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ تم کشتی میں سوار ہو کر جھیل کی دوسری طرف چلے جاؤ، میں لوگوں کو رخصت کر کے تمہیں وہیں ملوں گا۔ لوگوں کو رخصت کرنے کے بعد خداوند یسوع مسیح پہاڑ پر دعا کرنے چلے گئے۔
वो कुछ वक्त तन्हाई में अपने आसमानी बाप से दुआ करना चाहते थे। आपने काफी वक्त दुआ में गुजारा और बहुत अंधेरा छा गया। रात शुरू हो चुकी थी। आपने झील की दूसरी तरफ उस कश्ती को तलाश करना चाहा जिसमें शागिर्द सवार थे। वो काफी दूर जा चुकी थी। अचानक झील में तूफान आ गया और शागिर्दों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। हवा मुख्तलिफ सिमत से चली आ रही थी और इतनी तेज थी कि शागिर्दों का चप्पुओं को चलाना मुश्किल हो गया। कश्ती लहरों और हवा के दरमियान फंस कर रह गई और इसके उलटने का खतरा पैदा हो गया। रात के दरमियानी हिस्सा में खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पास जाने का फैसला किया। आप तूफानी लहरों के ऊपर चलकर कश्ती के करीब पहुंच गए। शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह को देखकर डर गए और समझे कि कोई भूत है। खुदावंद यीशु मसीह जानते थे कि शागिर्द खौफजदा हो गए हैं, इसलिए आपने फौरन पुकार कर कहा, खातिर जमा रखो, ये मैं हूं, डरो मत। पतरस ने खुदावंद यीशु मसीह से कहा, खुदावंद अगर आप हैं तो मुझे हुक्म दें कि मैं भी पानी पर चलकर आपके पास आ जाऊं। खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस को पानी पर चलकर आने को कहा। चुनाचे पतरस कश्ती से उतरकर खुदावंद यीशु मसीह के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर कुछ फासला तय करने के बाद जब उसने तूफानी लहरें देखी तो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से अपनी निगाहें हटा लीं। तब पतरस डर गया और पानी में डूबने लगा और चिल्लाकर कहा, आए खुदावंद मुझे बचा। खुदावंद यीशु मसीह ने फौरन अपना हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ऐ काम तकाद, तूने क्यों शक किया? जब पतरस और खुदावंद यीशु मसीह कश्ती में सवार हो गए तो हवा फौरन थम गई और लहरें साकिन हो गईं। शागिर्द बहुत हैरान हुए। उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को सजदा किया और कहा, यकीनन आप खुदा के बेटे हैं। उस रात खुदावंद यीशु मसीह ने ये मौजज़ा करके हमें सिखाया कि चूंकि उसने तमाम कायनात को खल्क किया है, इसलिए उसका फितरत की हर शय पर इख्तियार है। आपने पतरस और हमें ये भी सिखाया कि जब हमारे इर्द गिर्द खतरात के बादल मंडला रहे हों तो हमें मुकम्मल तौर पर खुदावंद यीशु मसीह पर भरोसा रखते हुए खौफजदा नहीं होना चाहिए और अपने ईमान की आंखें हमेशा उसी पर लगाए रखनी चाहिए। यकीनन हमारे कातरे मुतलिक खुदावंद यीशु मसीह हमेशा हमारी हिफाजत करते हैं। नाज़रीन, अब हम लूथर की मुख्तसर कैटेकिज्म से सीखते हैं लूथर डाइट ऑफ वर्म्स और वार्टबर्ग, लूथर की विटनबर्ग में वापसी और मौत, कैटेकिज्म का हमारी ज़िंदगियों में इस्तेमाल। आइए मिस्टर अमजद मुश्ताक की ज़ुबानी इसे सीखते हैं। और वार्टबर्ग 1518 में लूथर कार्डिनल कैजटन के सामने पेश हुआ, जिसे पॉप ने अपने नुमाइंदे के तौर पर भेजा था। कैजटन लूथर के 95 मकालों को ज़ेरे बहस नहीं लाना चाहता था, बल्कि उसने इसरार किया कि लूथर तस्लीम करे कि उसके मकाले गलत थे। लूथर ने कहा कि वो ऐसा नहीं करेगा जब तक कि कार्डिनल कैजटन बाइबल मुकद्दस से ये साबित न कर दे कि वो गलत हैं। एक साल बाद एक जर्मन चर्च स्कॉलर डॉक्टर अक के साथ मुबाहिसा में लूथर ने बयान दिया कि निजात हासिल करने के लिए पॉप की ताबियादारी ज़रूरी नहीं। इन बयानात के नतीजे में पॉप ने एक ऑफिशियल नोटिस भेजा जिसे पापल बिल कहते हैं, जिसमें कहा गया था कि लूथर रोमन चर्च का मेंबर नहीं रहेगा और अगर वह अपने मकाले और बयानात वापस नहीं लेता तो उनको जला दिया जाएगा, जब तक आप बाइबल से ये साबित ना कर सकें कि मैंने गलत बयानात दिए हैं। मैं कोई मकाला या बयान ना तो वापस ले सकता हूँ ना लूँगा।
मेरा ज़मीर खुदावंद के पाक कलाम के साथ बंधा हुआ है। मैं अपनी बात पर कायम हूँ, मैं इससे हट नहीं सकता। आए खुदा मेरी मदद फरमा, आमीन। और इसके जस्द खाकी को कासल चर्च की मेहराब के बिल्कुल नीचे दफन किया गया। लूथर और मुक्तसर कैटेकिज्म। लूथर ने अक्सर मसीही नौजवानों की ट्रेनिंग के लिए गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। वो लोगों से तकाजा करता था कि अपने बच्चों की तालीम के लिए मसीही स्कूलों को फंड्स मुहैया करें और उन्हें सपोर्ट करें। जब लूथर ने देखा कि बहुत से पासबान और वालदैन नहीं जानते कि किस तरह अपने बच्चों को बाइबल की बुनियादी बातें सिखाएं, तो उसने मुक्तसर कैटेकिज्म की किताब लिखी। लूथर का मसीही तालीम की किताब लिखने का अवलीन मकसद बच्चों की रहनुमाई करना था, ताकि वो जाने और ईमान लाएं कि नजात का रास्ता सिर्फ यसू पर ईमान लाने से है। बाइबल की तालीम की 6 अहम और बुनियादी बातें मुक्तसर कैटेकिज्म मसीही तालीम उस तरतीब में जैसे हम इन्हें पढ़ेंगे दर्ज झेल हैं। पहला 10 अहकाम, दूसरा अकीदा, तीसरा पाक बपतिस्मा का साक्रामेंट, चौथा पाक इशाक का साक्रामेंट, पांचवा कुंजियों और एतराफ़ का इस्तेमाल, और छठा दुआ रबानी मसीह की सिखाई हुई दुआ। कैटेकिज्म का हमारी ज़िंदगियों में इस्तेमाल। लूथरन चर्च ने हमेशा मसीही तालीम को बड़ी अहमियत दी है ताकि हर एक मसीही बाइबल की तालीम के मुतल्लिक जाने। 400 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी मसीही तालीम ने बुनियादी किताब की हैसियत से जवानों और बूढ़ों को पढ़ाने में इंतहाई मुअस्सर किरदार अदा किया है। जो कुछ मसीही तालीम में लिखा हुआ है उसकी बुनियाद बाइबल मुकद्दस के कलाम पर रखी गई है। जब हम मार्टिन लूथर की इस तालीम को तफसील से पढ़ते हैं और उसका मुआजना कलाम मुकद्दस से करते हैं तो हमें साफ पता चलता है कि लूथर की तालीम एक सच्ची तालीम है। ये वो तालीम है जिसको कलाम मुकद्दस में बयान किया गया है। जब हम कैटेकिज्म को ज़ुबानी याद करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये वो उन सच्चाइयों का खुलासा है जिन्हें कलाम मुकद्दस में बयान किया गया है। ये खुलासा एक ऐसी बुनियाद मुहैया करता है जिस पर हम लगातार इमारत तमीर करते जाते हैं। कैटेकिज्म की इस तालीम को हम अपनी ज़ाती बाइबल स्टडी से अपने ईमान को मजबूत करने के लिए तमाम ज़िंदगी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगरचे कैटेकिज्म नहायत आसान है, लेकिन फिर भी हमें इसको एहतियात से पढ़ना चाहिए ताकि हम बाइबल की सच्चाइयों को जान सकें और समझ सकें जिनको इख्तिसार के साथ इस किताब में बयान किया गया है। एक दफ़ा लूथर ने अपने बेटे हेंस से पूछा कि वो इस कैटेकिज्म की तालीम को कितना जानता है। बेटे हेंस ने बड़े फ़ख्र से अपने बाप को बताया कि पापा, मैं पूरी कैटेकिज्म बड़े अच्छे तौर पर समझता हूँ। इसकी वजह यह है कि मैंने इसे ज़ुबानी याद किया हुआ है। लूथर ने कहा, क्या वाकई? अगर तुम इसको इतना समझते भी हो तो तुम मुझसे ज़्यादा अक्लमंद हो। मुझे अभी भी इसका हर रोज़ मुतालिया करना पड़ता है। काश हम भी इस मुख्तसर कैटेकिज्म के मुसन्निफ की तरह बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयों को एक बेशबहा ख़जाना समझकर इनका पूरी जान फशानी से मुतालिया करें। खुदावंद आपको बरकत दे। नाजरीन, कैसा लगा आपको हमारा आज का प्रोग्राम? उम्मीद है कि आपने इस प्रोग्राम के वसीले बरकत पाई होगी। अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा पता है बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस एंड टीचिंग स्कूल, PO बॉक्स नंबर 6, साहिवाल, पाकिस्तान। अपना ख्याल रखिएगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे।